All right, ladies and gentlemen. So we are talking on Dhana Yogas, and this is another very important class. And let me, first revise what we did yesterday. So yesterday, what we did was we tried to understand Artha Dhana Yogas. So out of the Artha houses, 2, 6, and 10, the most important house is the 10th house. Okay. Now, the second condition was that there should be a planet in the 10th house. Okay. So one has to have a planet in the 10th house. If we don't have a planet in the 10th house, then this yoga has no significance. You don't even start with, this particular yoga. So there has to be a planet in the 10th house. Now, once we have the planet in the 10th house, we'll have to check that this particular planet is lord of which houses. Okay. And then we have to find the karkas of those houses. Now, that karka should be well placed in the chart. When I say well placed in the chart, it means that that karaka should be either in the kendra or in the trikona, can be swashetra, okay, can be exalted, okay, all right. And today I'm going to add another two terms, okay. So the another two terms are the karka of those houses, right, that you're considering can also be Vargottama. If it is Vargottama, then also that means it is in a good Navamsha, right? So if it is Vargottama, then also it is good. And based on the Gemini Sutra input, what does Gemini Sutra says? Gemini Sutra says that if that particular Karaka is also the Atma Karaka, even then it is very good. Okay, so I said that wherever the Atma Karaka is, it is pain. Fine, it can be pain, but if it is, you know, Atma Karaka, it is still stronger. So if it is in Kendra Trikona, maybe of, at a very highest degree, don't worry about it, right? Even if it is 29 degree or 28 degree, in the Kendra Trikona, you'll consider, oh, this is not powerful. This is Atma Karagraha. No problem. Even if it is an Atma Karaka, because in Gemini Sutra, the Atma Karaka is the first bala, right? It is the highest top priority bala. Okay, so that's another thing. All right. Now we go ahead. Now, so every Dhana Yoga has a priority. Okay, so the highest priority of the Artha Yogas are these first 12 yogas that we have discussed. Okay, now not everyone will have, you know, um, the first level of Dhana Yogas, because not everyone will have, a planet in the 10th house, not necessarily. So now the next yoga says that if there is no planet in the 10th house, then you look at the Karesha. Okay. So, like, what is the Karesha? Karesha is the 10th lord. Okay. So now the heading of this yoga is Karesha Dhani Yoga. Okay. Karesha Dhani Yoga. So how will you have Karesha Dhani Yoga? You first have to check the position of your 10th lord. Okay, check the position of the 10th lord. So if suppose your 10th lord goes in the which house? In the 10th lord goes in the second house or maybe in the third house. Okay. Now what steps will you take further? Okay, so you will see that who is the Karaka of that particular house. Okay, so your 10th lord, first of all, identify who is the 10th lord. Okay, so in that case, the 10th lord goes into the second house. Okay, but on the same time, you also have to check that this
particular 10th lord is the lord of which houses? Okay, so 10th lord is obviously lord of the 10th house. Okay, and it can be lord of some other house also if it is not Surya or Chandra. Okay, but keep that in the parking lot, because that is why Shani becomes the natural significator of your word. Okay, because जो 10th lord है वो बेसिकली 10th हाउस का भी लॉर्ड है, और 10th हाउस का जो कारक होता है वो कौन होता है? शनि. आई टोल्ड यू yesterday, right? And also the sub कारका of the 10th house is Mercury. So इसलिए कलयुग के अंदर बुध और शनि सबसे ज्यादा धन देते हैं. ये बात आप याद रखना, राइट? शनि जो धन देता है वो दुख के साथ देता है, बुध जो धन देता है वो सुख के साथ देता है, राइट? दैट natural benefic and malefic wala concept. Now what you do, you first check where is your 10th lord present. Now suppose if it is in the second house, which planet will you check? Jupiter. Okay, if 10th lord is in the first house, which planet will you check? Surya. If 10th lord is in the third house, which planet will you check? Mars. क्योंकि तीसरे घर का जो कारक है वो मंगल है. If 10th lord is in the fourth house, which planet you supposed to check? Moon. If 10th lord is in the fifth house, which planet you're supposed to check? Jupiter. If 10th lord is in the sixth house, which planet you're supposed to check? Shani. Okay, 10th lord in the seventh house, what planet will you check? Venus, Shukra. Okay, 10th lord in the eighth house, you will check Shani. 10th lord in the ninth house, which planet will you check? Jupiter. Jupiter. 10th lord in the 10th house. Saturn. Okay, now 10th lord is the Saturn itself. तभी होगा ना. So suppose करो 10th lord Saturn है and Saturn is in the 10th house. Now will you check Saturn? For this special yoga, you do not check Saturn for the 10th lord in the 10th house. वो सूर्य भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है. Whenever the 10th lord is in the 10th house, under this condition, you will check Mercury. याद रखना, यहाँ पर एक चेंज आया है. If the 10th lord is in the 10th house, okay, कल हम क्या चेक कर रहे थे? Saturn चेक कर रहे थे, राइट? अब Saturn के साथ साथ आपने दूसरा स्टेप क्या करना है? Mercury भी चेक करना है. ओके, सो कल वाले रूल में एडिशन है ये. ओके, सो कल वाला रूल क्या था कि देयर शुड बी अ प्लैनेट इन द 10th हाउस. तो 10th लॉर्ड 10th में हम सैटर्न चेक कर रहे थे, विच इज गुड, फेयर इनफ. लेकिन अगर आपको उससे रूल नहीं मिल रहा, उससे आपको एक स्ट्रॉन्ग योग नहीं मिल रहा, ओके, सो देन इफ देयर इज अ प्लैनेट इन द 10th house and if that is the 10th lord himself, only one condition, okay, only one condition, if the 10th lord is in the 10th house, okay, then check Mercury also. Okay, शनि के साथ साथ आपको किसको चेक करना है? You need to check Mercury also. 10th lord in the 11th house, Jupiter again. 10th lord in the 12th house, what will you check? Shani again, Saturn again. Okay, now this will make 12 different yogas. क्या करेगा? ये 12 और योग बनाएगा जिसमें आप अपने लगन लॉर्ड को चेक कर रहे हैं. लेकिन इसमें एक कंडीशन है, ये सीधा सीधा फलित नहीं होगा, ये सीधा सीधा फलित नहीं होगा. दिस रूल डजंट स्टॉप हियर. इसको क्या करना है आपको? इसको फर्दर चेक करने के लिए, यू नो व्हाट दिस रूल विल डू. 10th लॉर्ड, सपोज करो आपकी जो कुंडली है वो मकर लगन की कुंडली है, इमेजिन करिए, ठीक है? और मकर लगन के अंदर 10th लॉर्ड कौन होता है? शुक्र होता है. सैटर्न. मकर लगन के शुक्र. अंदर 10th लॉर्ड वीनस होता है, वीनस. है ना? और मान लीजिए आपका जो वीनस है वो सेकंड हाउस में बैठा है, सपोज करिए, ठीक है? तो सेकंड लॉर्ड में किसकी पोजीशन चेक करेंगे हम?
Brahaspati ki, right? Now Brahaspati should be in the Kendra or Trikona. Now the Brahaspati is in the Kendra and Trikona. Suppose है, तो इसका मतलब क्या है कि बृहस्पति जो है इस कुंडली के अंदर दशम भाव इस तरह से है कि जीवन में एक बार धन जरूर आएगा, एक बार धन अवश्य आएगा जीवन के अंदर, लेकिन क्या वो धन स्टेबल होगा? Will that particular money remain with you, or there are chances that you have earned money in your life at some stage but you also lost it, right? You also lost it. वो जो लॉस हुआ ना मनी, वो आपको कभी भी लग्न चार्ट से नहीं पता लगेगा. Okay, so that means the third thing which I was talking about yesterday is about the stability of the wealth. Okay, stability of the wealth. क्या वो धन stable होगा? Will it remain with you, or you'll have troubles? You'll have problems, right? कि क्या वो, will it be there with me or will it be gone? और अगर वो जाएगा तो किस रीजन से जाएगा, हमें ये चीज देखनी है. उसके लिए we have to jump to the Navamsh Kundi. We'll have to go to the D9 chart. Okay, now you go to the D9 chart. D9 chart के अंदर your 10th lord should not be sitting in 3rd house, 6th house, 8th house, 12th house, or should not be debilitated. अगर नवमांश में दशम भाव का स्वामी, लगन का दशम भाव का स्वामी नहीं, नवमांश का ही दशम भाव का स्वामी. ओके, अगर नवमांश का स्वामी 3rd हाउस, 6th हाउस, 8th हाउस, 12th हाउस में बैठा है या नीच का है, then you cannot expect a stable wealth in your life. आपको किसी ना किसी मौके पे वो तत्व के हिसाब से, कारक के हिसाब से आपको प्रॉब्लम दे देगा. कैसे? अगर नवमांश का, if the lord of the 10th house in the D9 chart, Navmanch Kundli, is sitting in the 3rd house, how will you lose your wealth? How will it create instability? It will create instability because of your siblings. भाई के कारण डिवीजन हुआ, भाई के कारण वो पैसा आपका जो लाइफ में आया था, पिताजी ने बिल्ड किया था, वो गया. या आपने चेंज ऑफ प्लेस किया, आपका फैक्ट्री यहाँ पर चल रहा था, बहुत अच्छी दुकान चल रही थी, राइट? यू सेड नहीं नहीं, इसको बड़ा करते हैं, कहीं और जाके जमीन लेके इसको बड़ा बनाते हैं, कुछ करते हैं नया. जैसे ही आपने जगह चेंज की, आप वहां पहुंचे, you lost it. 10th lord in the 3rd house. Why I'm telling you these things is that you have to warn the people who are taking consultations from you that, hey, look, you can be ruined by these concepts. Whenever 10th lord is in the 3rd house in the Navamsh Kundli, there are strong chances of losing money in new startups. आजकल स्टार्टअप का बहुत योग है. Everyone say I have a startup company. People don't know the meaning of startup. You know what is the meaning of startup? Startup doesn't mean that you open a YouTube channel like me. Startup doesn't mean, that you start some, restaurant. That is not a startup. That is starting of a new business. The right definition of a startup is you start something which nobody has done that before. Some unique product in the market that has been never in the market, and you brought that thing and that you have introduced for the first time. That is known as a startup. So if you come to me and tell me, okay, I'm opening a restaurant, it is a new startup, I laugh on such people. This is not a startup. There are many such restaurants. For you, it is a startup.
For industry, it is not a startup, okay? It is the beginning of your business. That's it. You started a business. A lot of people said, I started a new business, but do not call it a startup. Startup means when something is completely unique, when something is introduced for the first time in the market and nobody has done it, there's no competition. And then slowly the competition develops. So that particular thing is a startup. So you can lose money in the startup. What if the 10th lord is in the 8th house? 10th lord of the Navamsh Kundli is in the 8th house. You may lose money because of your father. You may lose money because of your in-laws. You may lose money because of some accident, sudden event. फैक्ट्री में आग लग गया, सब खत्म हो गया, बड़ा अच्छा काम चल रहा था, आपका एक्सीडेंट हो गया, आपकी यादाश्त चली गई, आपका एक्सीडेंट हो गया, आप बेड रिटर्न हो गए। आपका पार्टनर बहुत अच्छा काम कर रहा था, उसने मार्केट संभाला हुआ था, आपने प्रोडक्शन संभाला हुआ था, आपका पार्टनर मर गया। आपको मार्केट का पता ही नहीं, किससे कितना पैसा लेना है, किससे कितना देना, यू डोंट नो, यू हैव नो आइडिया। Major loss. 10th lord in the 8th house of the Navamsha. 10th lord in the 6th house. आपका दुश्मन के साथ झगड़ा हो गया, बीमारी आ गया, अगर 10th लॉर्ड 6th हाउस में है। आपका टैक्सेशन का प्रॉब्लम आ गया, देयर आर सॉरोज इन द बिजनेस, बीमार रहते हैं लोग, लेबर प्रॉब्लम आती है, राइट? सो यू लूजिंग मनी बिकॉज ऑफ you have very good 5-6 laborers, 2 of them died, they became old, 2 of them left it, you have no work to do, you are in such a mess. So नवमांश कुंडली में 10th लॉर्ड कहाँ गया? 6th हाउस में आया, राइट? तो जितने भी 6th हाउस के तत्व हैं, उनकी वजह से आप पैसा लूज करोगे। और आपको ये भी देखना है कि वो प्लेनेट कौन सा है, इज इट मार्स, इट इज वीनस। अगर 10th लॉर्ड वीनस है और वो छठे भाव में आकर बैठा है, तो दैट मीन्स यू विल लूज मनी बिकॉज of a dispute with a female. Female will come and ditch you. I remember I saw a chart of a real estate guy, a fantastic guy, इतना पैसा बनाया, इतना पैसा बनाया, उसका उसकी सेक्रेटरी के साथ अफेयर हो गया, पर्सनल सेक्रेटरी के साथ। अब अफेयर हो गया तो धीरे धीरे उसको बोल रहा है कि ओके नो, आई विल मेक यू सम पार्टनर, तो उसको एक प्रोजेक्ट में पार्टनर बनाया। अब उसको मन में थोड़ा लालच आ गया, उस लड़की के मन में, अरे यार आई एम समथिंग। अब उसको लालच आया करते करते वो इतनी अथॉरिटेटिव होगी, उसने उसके साथ वाले जो अच्छे वर्कर्स थे उसको निकालना शुरू किया कंपनी में से, बिकॉज शी वाज लिटिल शॉर्ट टेम्पर्ड। इस बात पे उसका उस कंपनी के मालिक के साथ झगड़ा हुआ। अब उसको थोड़ा बेइज्जती फील हुआ, तो बोला मैं बदला लूंगी, लेकिन अफेयर चालू रखा, तो दारू वारू पिला के उससे पेपर्स पे साइन करवा लिए, 70-80% प्रोजेक्ट्स अपने नाम कर लिए उसने। उसको पता था कि प्रॉपर्टी में कैसा होता है। अब जब ये डिस्प्यूट देखा, तो जितने लोगों ने इन्वेस्ट किया हुआ था प्रॉपर्टी में, या जितने बायर्स ने पैसा दिया हुआ था कंस्ट्रक्शन लिंक प्रोग्राम में, सबने पेमेंट्स रोक दिया कि ये तो कंपनी डूबने वाली है, दैट वर्ड ऑफ माउथ इन द ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। और उसके कम से कम लुधियाना में, पंजाब में, दिल्ली में, पूरे इंडिया में कितने प्रोजेक्ट्स हैं that have come to standstill. People have done cases, against him, right? And now he's behind the bars. All the projects are closed. वो लड़की अपना 5-10 करोड़ रुपया लेके निकल गई थी। क्या था नवमांश कुंडली में, क्या था? What was the problem in the नवमांश कुंडली? The 10th lord was in the 6th house and the 10th lord was Venus. The 10th lord was Venus. Just give me a second, please. So the 10th lord was Venus, and in the
At times I saw the 10th lord in the Navvansh Kundli was सूर्य. सूर्य कहाँ गया? अष्टम भाव में. अष्टम भाव क्या है? मृत्यु है. पिता के रहते रहते क्या काम चल रहा था? फादर डाइड. फादर डाइड, सूर्य था ना, 10th लॉर्ड सूर्य था. वेंट टू दी 8th हाउस, राइट. फादर डाइड, उसके बाद वो बिजनेस ही नहीं संभाल पाया. इट्स गॉन, खत्म हो गया. 10th लॉर्ड वह शनि एंड राहु. शनि और राहु दोनों 12वें भाव में बैठे थे. सपोज द 10th लॉर्ड ऑफ नवमांश कुंडली शनि एंड ऑल्सो राहु. मान लो एक्वेरियस है 10th हाउस में. हाँ, नाउ दैट इज गॉन वेयर? दैट इज गॉन इन द 12th हाउस. 12वें भाव में गया. उसका एक टाई अप हुआ फॉरेन कंट्री के साथ. फॉरेन एलिमेंट आ गया ना 12वां भाव. उस कंट्री ने, कंपनी ने उसको इन्वेस्ट करवाया. इन्वेस्ट करवाकर उसका आगे ऑर्डर ही नहीं उठाया, सब खत्म कर दिया, फिनिश. तो लगन कुंडली पैसा दे रही थी, इन्वेस्टमेंट थी उसके पास, लगन कुंडली ने पैसा कमाया. लेकिन नवमांश ने, जहां पे डिग्निटी थी, राइट, वहां पर क्या हुआ कि आपका जो 10th लॉर्ड है वो वेल प्लेस्ड होना चाहिए. 10th लॉर्ड त्रिक भावों में, दुष्टाना भावों में, राइट, या डिब्लिएटेटेड नीच का नहीं होना चाहिए. क्योंकि जो ग्रह नीच का होता है उसे असुर दोष लग जाता है. क्या दोष लगता है? असुर दोष. रेट्रोग्रेड प्लैनेट को राहु दोष लगता है. ओके. डिब्लिएटेटेड प्लैनेट को दैत्य दोष लग जाता है, दैत्य. अब सपोज करिए कि आपका 10th लॉर्ड जो है वो डिब्लिएटेटेड है, चाहे वो केंद्र और त्रिकोण में ही डिब्लिएटेटेड है. आपको देखना पड़ेगा कि वो कहां पे डिब्लिएटेटेड है. सपोज आपका 10th लॉर्ड 5th हाउस में डिब्लिएटेड हो गया. आपके बच्चे आपको चीटिंग कर देंगे. जैसे ही बच्चे बिजनेस में आएंगे ना, देयर विल बी ए चीटिंग. अगर 10th लॉर्ड 7th हाउस में डिब्लिएटेटेड है, आपकी कोई ना कोई एसोसिएशन ऐसी होगी, देयर विल बी सम एसोसिएशन जिसकी वजह से आपका पैसा जाता रहेगा, राइट. आप ऑर्डर पकड़ रहे हैं, काम ले रहे हैं, अपना पैसा उसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं, प्रॉफिट नहीं आ रहा, और लोग आपसे पैसा अपना वापस मांग रहे हैं. क्या हुआ? 10th लॉर्ड सप्तम भाव में डिब्लिएटेटेड हो गया. 10th लॉर्ड 8th हाउस में डिब्लिएटेटेड हो गया, तो लोग आपको एक्सीडेंटली आपसे उधार पैसा लेके जाएंगे, वापस ही नहीं करेंगे. दे विल नॉट रिटर्न. यू आर बेगिंग देम योर मनी, दे विल नॉट रिटर्न द मनी टू यू. वो दबा लेंगे. अष्टम भाव जमीन के अंदर दबाने का होता है. जैसे वो बोलेंगे ना, आपने, उसने मेरा पैसा दबा लिया, उसने मेरा पैसा खा लिया, राइट. तो ये जो योग है, सो इफ द सेकंड योगा what I have told you is, if you don't have a planet in the 10th house, go check the lord of the 10th house. Wherever the lord of the 10th house is sitting, right, the karaka, okay, the karaka, okay, of that house is very, very important. Okay, so go check the karaka of that house. So see that the karaka of that house, should be well placed. But this will give you money. But will that money stay with you? Will that money stay with you? Okay, you need to check in the Navamsh Kundli that the 10th lord of the Navamsha should not be in 3, 6, 8 or 12 or debilitated. पैसा आएगा लेकिन वो खराब होगा, वो रुक जाएगा. नाउ रमन, मेरे को समझ ही नहीं आया, इफ इट इज जुपिटर तो मुझे क्या पता लगे. गुरुजी, अगर 10th लॉर्ड जुपिटर हो और वो 8th में हो. हाँ, 10th लॉर्ड नवमांश का. जी जी. नॉट गुड, नॉट गुड. उसमें किसी ना किसी टाइम पे जीवन में, बिकॉज ऑफ योर बॉस, राइट,
बिकॉज ऑफ फादर, बिकॉज ऑफ सम सडन इवेंट आपको बहुत नुकसान हो सकता है, पैसे की स्टेबिलिटी नहीं आती है। How many of you've got your 10th lord of Navmansh in 6, 8 and 12 और third house? लिखो जरा, let me see. सुनंदा आपका है, 10th lord कहाँ है? So in D9, it's in 12th house. हाँ 12th है ना? You got to be very careful with any transactions in the exports or foreign. कोई भी फॉरेन एलिमेंट का आदमी जो होगा, आउट ऑफ सिटी, आउट ऑफ स्टेट, आउट ऑफ कंट्री, वो आपका पैसा खराब कर सकता है। वो धन योग वाणी आपको फलित पैसा रहेगा, बट यू गॉट टू बी वेरी केयरफुल, राइट। कभी कभी पैसा कहाँ चला जाता है? इलाज में चला जाता है। Yes. कि कॉन्टिन्यूसली घर पे किसी का इलाज चल रहा है, तो आपका धन जो है कहीं ना कहीं हॉस्पिटलाइजेशन, इलाज, उसमें जा रहा है कॉन्टिन्यूसली। अगर 10th लॉर्ड 12th हाउस में है, एक्सपेंसेस में ही, मतलब आपका धन संचित नहीं हो रहा है बिकॉज ऑफ एक्सपेंसेस। अगर आप काम नहीं करते हैं तो एक्सपेंसेस इतने हो रहे हैं कि जोड़ने की कोशिश करते हैं पर जुड़ता नहीं, कोई ना कोई खर्चा आता रहता है। Yes. True, sir. या Thank you, sir. ओके राजेश्वर गुरुजी, 10th house becomes Aquarius and Scorpio. How would be consistent in one's Lord is well present? थोड़ा इलेबोरेट करना जरा राजेश्वर Hare Krishna Guruji. जी। Guruji, like when 10th house becomes either Scorpio or Aquarius, as we Yeah. have two lords. So if one lord is well placed, other lord is not well placed, either going in Trikbhava or debilitated. So हाँ, how तो फिर would वो we check क्या the होगा? thing? इट इज लाइक अ मीडियम ही होगा ना, एक जगह तो अच्छा आ रहा है फिर दूसरी जगह जा भी रहा है। सो जो अच्छा नहीं है उस कारक को देखो, राइट। Okay. अगर शनि खराब है, राहु वेल प्लेस्ड है, ठीक है, तो आपको शनि यानी कि बड़े बुजुर्ग लोग हो गए, इनकम टैक्स हो गया। शनि क्या है? इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपका, शनि इज इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, तो आपको इनकम टैक्स से दिक्कत आ सकता है, ठीक है। अगर राहु खराब है तो फॉरेन एलिमेंट से, टेक्नोलॉजी से दिक्कत आ सकता है। 10th लॉर्ड मर्क्यूरी है, नीति बोली छठे भाव में, बीमारी में पैसा जाता है, रोग शोक कर्जा ऋण बीमारी, शत्रु पैसा खाने की कोशिश करते हैं। 10th लॉर्ड इज इन द 10th हाउस बट इट इज रेट्रो, नो प्रॉब्लम इफ इट इज रेट्रो, थोड़ा डिले है, लेकिन 10th लॉर्ड इन 10th हाउस इज फैंटास्टिक इन द नवांश। It is not at all bad. It is absolutely great to have 10th lord in the 10th house. You see, आप देख रहे हैं ये किस तरह से फलित होता है, ठीक है। अमिताभ बच्चन की कुंडली देखते हैं, let's see his chart. Okay, here we go. Where is the 10th lord? Can you see the screen? Where is the 10th lord? 10th lord in the 8th house. 10th. 10th lord is in the 8th house. Yeah. Who is the karaka? So Saturn. Saturn. Saturn is where? Saturn is retro in 4th. 4th house. Okay, fine. Can we go to Navamsha? Shall we check Navamsha? Where is the 10th lord? Moon, 4th house. 10th lord in 4th house. Kendra. आ गया, स्टेबिलिटी आ गया ना, Stability. स्टेबिलिटी आ गया। और एग्जॉल्टेड जुपिटर का दृष्टि भी है, आप समझ रहे हैं? एग्जॉल्टेड जुपिटर का दृष्टि भी साथ में है, और मंगल की नीचता भी भंग हो रही है। और इनका 8th हाउस वाला जो फॉर्मूला, सेकंड फॉर्मूला, वो इस पे आता है कि 8th हाउस जो है खाली है और उसका लॉर्ड को कर दें। कहाँ पर? D1 में हाँ हाँ, 10th हाउस इज कोई Empty. planet नहीं है। मैं वही हाँ, बोला empty. ना, जी। the 10th lord is not there, इसका मतलब ये नहीं कि धन नहीं है। 10th lord का जी। देखो कहाँ है, शनि गया केंद्र में, जी। उसके बाद इसको चेक करना है स्टेबिलिटी को, रहेगी कि नहीं कि 10th lord of the नवांश कुंडली is should be well placed in the केंद्र और in the त्रिकोणा। और ये जो 10th लॉर्ड इन दी नवांशा है ना, ये आप ओवरऑल स्टेबिलिटी के लिए भी चेक कर सकते हैं कि स्टेबल पैसा होगा कि नहीं होगा, ठीक है।
लुक एट दिस चार्ट. ओके, इसमें तो केतु वाज देयर. हम्म, ठीक है, शनि आपने कल बताया कि त्रिक जी। भाव में है. जी ठीक है, शनि चलो हमारे ठीक है. लेकिन यहाँ पर आप नववांश में देखिए, नववांश में 10th लॉर्ड कहाँ है? जुपिटर 10th में ही बैठे हैं। स्व राशि का है. 10th house. हम्म, देख रहे हैं आप, स्व राशि का है और हम्म, केतु के साथ बैठा है. Ketu is जबरदस्त पावर। 7th. समझे, अपने बेस्ट फ्रेंड के साथ बैठा है. हम्म, लेकिन वो पैसा कहाँ से दे रहा है? सिर्फ धर्म से दे रहा है. हम्म, सिर्फ धर्म से दे रहा है. आप समझते हो कि ये जो धनयोग हैं कितने पावरफुल है. D9 में अगर गुरुजी आपने अभी 3, 6, 8, 12 बताया और केंद्र और त्रिकोण बता दिया, हाँ, अब बच गया इसमें 11th हाउस और 2nd हाउस में अगर जाता है तब। देखिए अगर आप 11th और 2nd हाउस में जाता है तो उसको हम एक एवरेज योग मानेंगे कि ठीक है, पैसा रहेगा, समाज पैसा देगा, क्योंकि 2nd और 11th हाउस जो एक्चुअली धन भाव है ना कुंडली के अंदर, वो कोई बहुत पावरफुल भाव नहीं है. पावरफुल भाव केंद्र त्रिकोण है. ये बात आप याद रखिएगा. जी केंद्र एंड त्रिकोणा आर दी पावरफुल हाउसेस. 11वें भाव में जाएगा, आपका पैसा तभी स्टेबल रहेगा अगर आप गुरु के चरण पकड़ के बैठेंगे. और 2nd हाउस में जाएगा तो आपका पैसा तभी स्टेबल रहेगा आप अगर परिवार के साथ जुड़ के रहेंगे. अगर आप परिवार के साथ जुड़ के नहीं रहेंगे, परिवार के साथ इज्जत नहीं करेंगे, रिश्तेदारी में, अपने घर परिवार में, फैमिली का ध्यान नहीं रखेंगे, यू लूज मनी. 11th हाउस में आपको गुरु के चरण पकड़ने होंगे. In D9, 10th Lord Jupiter is in the 7th house. हाँ तो ठीक है, 10th Lord in the 7th house is not bad. It is okay. And 10th house also Ketu. So that's fine. That's fine. अध्यात्म के साथ, धर्म के साथ जुड़ के रहोगे, ठीक रहेगा. 10th Lord is in the Kendra or Trikona or not, that is more important. That is the most important thing. Right? So how many of you people have got your 10th Lord in Kendra or Trikona? Write down. In the Navvansh Kundli. किसका है 10th लॉर्ड इन द केंद्रा त्रिकोणा? हाँ तो ठीक है, मतलब जीवन में कभी ऐसा समय नहीं आएगा कि एकदम जीरो हो जाओ या आपको सड़क पे आना पड़ जाए और सब माइनस हो जाए. राइट, ऐसा समय कभी नहीं आएगा. क्या बात है राजेश्वर. 10th लॉर्ड इन द 10th हाउस, जुपिटर इन पाइसेस. ये तो मेरी टीम में है. इज इन माई टीम. इसको हम दोनों क्रिकेट खेलेंगे तो हम दोनों ओपनिंग करेंगे, आउट ही नहीं होंगे. ठीक है ना. will not get out. Rahu in the Trikona but Saturn in the 2nd house. 10th house is Aquarius. हाँ तो ठीक है, बड़ी अच्छी बात है. एक आपको रूल, बेसिक पराशरी का रूल है कि अगर मेलेफिक केंद्र का या त्रिकोण का स्वामी हो और पावरफुल बैठा हो तो बहुत अच्छा होता है. पहले चैप्टर पढ़ोगे ना बीपीएचएस के, उसमें लिखा मेलेफिक being the lord of the Kendra or Trikona, sitting in Kendra Trikona is very good. पढ़ा आपने ये लॉ? पढ़ा? किसने पढ़ा? सनी ने पढ़ा होगा. R&D सनी पढ़ा कि नहीं पढ़ा? शुरू में क्या हाँ बोला सनी? क्या अभी मैंने क्या बोला? रिपीट करो सबको. If a malefic planet is the lord of the Kendra Trikona, sitting in Kendra Trikona is very powerful. यही है सनी? Ji Guruji, I think it also relates to like that Kendradipati principle. हाँ, Like Malefic becomes that. मेलेफिक अगर केंद्र का स्वामी है और वो केंद्र में बैठा है तो लॉटरी लग गई आपकी. लेकिन वो डिब्लिएटेटेड या खराब नहीं होना चाहिए. अगर वो डिब्लिएटेटेड हो गया, अस्त हो गया, तो सारा मजा ही खराब हो. और ये जो ग्रह ना, शनि नहीं होना चाहिए अगर शनि एफ्लिक्टेड हो गया. क्योंकि शनि पता क्या है, मैं आपको समझाता हूं. आपको समझना चाहिए. जो मेरा एक्सपीरियंस कहता है, सूर्य कहता है कि मैं एक इंसान को इम्यूनिटी दे सकता हूँ, ये सब दे सकता हूँ, ये सब अच्छी चीजें कर सकता हूँ. चंद्रमा कहता है कि मैं नरिशमेंट दे सकता हूँ. मंगल कहता है कि मैं आपको ब्रेवरी दूंगा. बुध कहता है मैं आपको इंटेलिजेंस और पैसा दूंगा. गुरु कहता है कि मैं आपको एक्चुअल धन दूंगा. शुक्र कहता है कि मैं आपको लग्जरी दूंगा.
सो 1 से लेके 6 नंबर तक सारे ग्रह कहते हैं कि मैं आपको कुछ ना कुछ दूंगा। ये जो शनि है ना, शनि ये कहता है कि ये जो 6 के 6 ग्रह आपको कुछ ना कुछ देंगे ना, और इनका जितना भी नेगेटिव है, मतलब अगर सूर्य नेगेटिव होता है तो क्या करता है, इम्यूनिटी खराब करता है, आपके सरकार के साथ प्रॉब्लम लेकर आता है, अथॉरिटी के साथ प्रॉब्लम लेकर आता है, वो सारा नेगेटिव शनि अपनी जेब में डाल लेते हैं, और 6 के 6 ग्रहों का सारा नेगेटिव शनि देने के लिए केपेबल है। लग्जरी, अगर आप शुक्र आप लग्जरी नहीं देना चाहते ना, तो मुझे बताओ किसको लग्जरी नहीं देनी है, मैं उसको जाके उसकी लग्जरी खत्म करता हूं। तो शुक्र की लग्जरी नेगेटिविटी शनि के पास। अगर किसी का पैसा इंटेलिजेंस खत्म करनी है, बुध को बोलता है आप अपना नेगेटिव मुझे, आप नहीं दे सकते ना किसी को नेगेटिव, आप नेचुरल बेनिफिट को आप मुझे दे दो, मैं जाके उसका ये काम खराब करके आता हूं, क्योंकि मैं शनि हूं। ये दिस इज द डायलॉग दैट शनि सेज, मैं शनि हूं, मैं शनि हूं, मैं शनि हूं, ऐसे बोलते हैं कि जिस भी पर्टिकुलर ग्रह का 6 के 6 ग्रहों की नेगेटिविटी जो 6 के 6 ग्रह नहीं आपको दे सकते, वो थ्रू शनि देते हैं, थ्रू शनि देते हैं। मंगल बोलता है यार मैं पुलिस वाला हूं, मैं इंसान को पीटूंगा लेकिन उसको गोली नहीं मारूंगा। तो बोला यार, शनि कहता मैं मरवा देता हूं गोली, राहु को बोल, राहु गोली मार दे, खत्म कर। उसका तत्व है पुलिस वाला, किसी को पुलिस विल टॉर्चर यू एवरी डे, पुलिस डोंट वांट टू किल यू, डिफेंस सर्विस किसी को मारना नहीं चाहता, लेकिन शनि क्या है, ऑर्डर है, वो नहीं कर सकते ना, मैं करवा देता हूं, आई विल हेल्प यू। किसी की लॉन्जिविटी खत्म करनी है ना, मैं कर देता हूं, इसीलिए वो लॉन्जिविटी का कार्य वो मार देगा। आप समझ रहे हो? बोला शुक्र है, ये बहुत ब्यूटीफुल दिखता है, मैं कभी बूढ़ा नहीं होना चाहता। शनि कहता कोई बात नहीं, मैं बूढ़ा कर देता हूं इसको, 1 मिनट लगाऊंगा, इसके बाल उड़ा देते हैं, इसकी स्किन सारी खराब कर देते हैं, इसको मोटा कर देते हैं, इसको बूढ़ा कर देते हैं, लाओ शुक्र लाओ मुझे दो ड्यूटी दो, मैं इसको बूढ़ा करता हूं। तो टेक्निकली मेरे कहने का मतलब है कि केंद्र में, त्रिकोण में, लग्न में और नवमांश में शनि अगर दशम भाव के साथ कोई संबंध बनाता है तो वो खराब नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो बहुत ही खराब कर देता है, क्योंकि वो 6 के 6 ग्रहों की नेगेटिविटी वो लाकर आपको फिनिश कर देगा, वो बहुत तंग करेगा। 6 के 6 ग्रह एक तरफ होंगे जो आपको कुछ देना चाहते हैं, और वो अकेला शनि आपको देने नहीं देगा। ये प्रॉब्लम है सैटर्न के अंदर। This is the major problem, because he is the sorrow of all the planets. He is what? He is sorrow of all the planets. He is not success. He is not happiness of all the planets. He is the sorrow. He is the pain of all the planets. समझिए इस बात को। Same yoga for further things. You know, you have to check where the position of the 10th lord, कहाँ चेक करना है, right? You have to check the position of the 10th lord in the Dashamsha chart also. Look where, look where. Now that is the third priority, right? इसमें क्या होता है, आपका ओवरऑल लॉस नहीं होगा। Now listen to me very carefully. दशांशा का 10th लॉर्ड क्या बताता है, नवांशा का 10th लॉर्ड बताता है कि आपका ओवरऑल प्रॉफिट सिक्योरिटी कैसी रहेगी, ठीक है। ओवरऑल प्रॉफिट सिक्योरिटी का मतलब है कि ओवरऑल आपके जितने काम हैं उसमें से कैसे कैसे पैसा आता रहेगा, आपकी खुशहाली होगी कि नहीं होगी, स्टेबल आपके घर पे पैसा रहेगा कि नहीं रहेगा। दशांश कुंडली का जो 10th लॉर्ड है वो ये बताता है कि आपके पास से पैसा जा सकता है, लेकिन वो बिजनेस के ऑपरेशंस में थोड़ा थोड़ा पैसा जाएगा। सपोज आपका 10th लॉर्ड इन दी दशांशा चार्ट इज इन द 6th हाउस, तो कोई ना कोई लीगल काम होता रहेगा फॉर नो रीजन, उसमें पैसा जाता रहेगा। अगर अष्टम भाव में है
तो बिजनेस में सडनली खर्चा आता रहेगा, ठीक है। बिजनेस में कुछ नया शुरू करोगे, टी शर्ट नई बनानी शुरू की, नहीं चली, बंद कर दी। 10th लॉर्ड in the third house in the dashamsha is only your work centric, not overall profit centric. Overall profit centric thing is D9. सिर्फ वर्क के अंदर एक स्पेशलाइजेशन। देखो डिविजनल चार्ट्स किस लिए होते हैं? डिविजनल चार्ट्स आपकी माइक्रो डायसेक्शन है, कि और अंदर जाके देखो, और अंदर जाके देखो। सो अगर आपका 10th लॉर्ड 12th हाउस में है तो आपके खर्चे एक्सपेंसेस होते रहेंगे बिजनेस के, वेस्टफुल एक्सपेंसेस। पैसा है वो किसी की बीमारी में लग रहा है, किसी को फॉरेन में पैसा दिया, उससे रिजल्ट बहुत लेट आ रहा है, सो दैट काइंड्स। ओके, इसका मतलब ये नहीं है कि अगर 10th लॉर्ड 12th हाउस में चला गया दशांश कुंडली में, तो ये भी बताता है कि फॉरेन से पैसा आएगा, ये बताता है, इट शोज दैट द मनी विल कम फ्रॉम द फॉरेन, but there will be also losses when you invest in the foreign country. Remember this, right? तो ऐसे लोगों को जिनका दशांश चार्ट के अंदर 10th लॉर्ड 12th हाउस में हो, if you want to do exports, be very careful. Think, and discuss all the pros and cons before you start your exports. Before you start your exports. But if the 10th lord, in the dashamsha is in the kendra or trikona, well placed, not debilitated, fine, fair enough, it is good, not bad, right? You can do your work, लेकिन ये थर्ड प्रायोरिटी है, वो वर्क मिलेगा। D9 पहले वो फिल्टर करके D10 के पास आ रहा है, राइट? सो दिस इज योर लग्न कुंडली, आउटर है, राइट? आपका आउटर एनवायरनमेंट सपोर्ट नहीं मिल रही। D9 कहता है कि मैं सपोर्ट करूंगा, जितना भी पैसा है, चाहे आप 25,000 कमाओ या 25 लाख कमाओ महीने का, मैं आपको बताऊंगा कि स्टेबल होगा कि नहीं होगा। D10 बताता है कि आपका जो पर्टिकुलर वर्क है, जो दुकानदारी है, उसमें लॉसेस हो सकते हैं, थोड़े बहुत लिटिगेशन हो सकती हैं, सडन लॉस हो सकता है, नए स्टार्टअप में प्रॉब्लम आ सकती है, या आपका बिजनेस ठीक चलता रहेगा। डोंट वरी अबाउट दैट, राइट? So people who are business people, who are entrepreneurs, and you have your 10th lord of the Shamsha in 3, 6, 8 or 12, you got to be careful. आपके डे टू डे खर्चे होंगे, डे टू डे आपको प्रॉब्लम्स आ सकती है, डे टू डे कोई देखो, अगर दशांश का 10th लॉर्ड इज इन द 6th हाउस, आपको ना डेली बेसिस पे लेबर के साथ, इसके साथ, उसके साथ कोई ना कोई कलेश जो है वो रहने ही वाला है। There is no doubt about it. There's no doubt about it. Okay? So यहाँ पर अच्छा, अब अगर मान लो आपका 10th लॉर्ड दशांश में 11th हाउस में है, ओके, सो व्हाट विल हैपन? आपका जो समाज है ना, आपका जो पब्लिक है, आपका सारा वर्क समाज के ऊपर जुड़ा हुआ है, राइट? आपका सारा वर्क बेस्ड ऑन कि आपको समाज लाइक करेगा कि नहीं करेगा, राइट? मतलब जैसे सेलिब्रिटीज की कुंडली में होता है, ये देखो अमिताभ बच्चन की कुंडली में क्या हो रहा है, व्हिच इज द 10th लॉर्ड। 2 लॉर्ड है अब इसके, कौन कौन से हैं? वन इज केतु, Ketu and Mars. फैंटास्टिक, केतु एंड मार्स। ठीक है, मार्स, ठीक है। तो क्या कर रहा है? एक लॉर्ड केतु फैंटास्टिक वेल प्लेस्ड है, और दूसरा लॉर्ड का सारा कुछ किसके ऊपर डिपेंडेंट है? पब्लिक के ऊपर, 11th हाउस। आप समझ रहे हैं मेरी बात? सो मतलब कितना रेलेवेंट है ये? हाउ रेलेवेंट इज दिस? When you start looking at certain charts, you said, wow, 10th lord in the first house with Mars and Mercury in D10 can do export import. Now these are 2 questions that you are asking. Ask a single question. I don't understand what you're saying. Did anyone understand what is she saying? 10th lord in the first house with Mars. ये किसकी बात कर रहे हो? D10 की? D10 में जो आपका प्रोफेशन है वो अपेक्षिका बल से पता लगता है, Okay. ठीक है? 10th lord in the first house with Mars and Mercury Mercury.
हाँ। in D10. So यहाँ पे exports की बात कहाँ से आई? नहीं सर, How- D10 में 10th लॉर्ड जो है फर्स्ट हाउस में मर्क्यूरी और मार्स के साथ बैठा है, तो हाँ, अगर तो आपके मन में इसमें कैसे आया कि एक्सपोर्ट कर सकता है? How did it came in your mind कि यहाँ पे एक्सपोर्ट हो सकता है? Is Mars and Mercury making any संबंधा with the 12th house? नो सर, हाँ हाँ। सो आप एक्सपोर्ट्स को ऐसे नहीं देख सकते हो। एक्सपोर्ट्स को देखने के लिए D10 में आप एक चीज फॉर्मूला प्रिंसिपल बेसिक देख सकते हो, इज द 10th लॉर्ड इन द 12th हाउस और द 12th लॉर्ड इन द 10th हाउस। ओके जी गुरुजी। ठीक है, यू हैव टू लुक लाइक दैट। ठीक है, तो फिर आपको देखना पड़ता है कि 10th लॉर्ड फर्दर मतलब उसको D9 में कैसा बैठा है, D1 में कितने धन योग मिल रहे हैं, कब जाके वो ट्रिगर होगा, ईश्वरीय योग है कि नहीं है, हाँ गुरु योग है कि नहीं है, फिर 511 वाला मंत्रेश योग है कि नहीं है। मंत्रेश योग जो होता है वो आपको इतनी नॉलेज देता है कि इंसान अपने नॉलेज से पैसा कमाते हैं। ईश्वरीय योग भगवान की कृपा है कि विष्णु जी आपके साथ हैं। ठीक है, भाव कारक मतलब कारक पता कौन होता है? कारक देवता होता है, वो आपके साथ है। नवमांश कुंडली क्या होती है आपको मैं थोड़ा और एडवांस बताता हूं। एडवांस ये है कि अगर आप ध्यान से मेरे एक छोटे से कॉन्सेप्ट को समझें, you will really understand many things. There is something known as संचित कर्मा, there is something known as प्रारब्ध, and there is something known as jataka. What is jataka? Your horoscope. This is known as D1, this is known as D9, and this is known as D60. कोई मुझे एक्सप्लेन कर सकता है इसको? Can somebody explain me? मैंने कुछ आपको हिंट लिख के दिया है, D1, D9, D60, बताओ। संचित कर्म है गुरुजी, जो आप जो भी अच्छा या बुरा स्टोर कर रहे हैं, सोल जो आपकी रिकॉर्ड कर रही है, कार्बन कोडिंग जी। प्रारब्ध है जो आपके इमीडिएट जो इसके पहले वाली जो प्रीवियस बर्थ थी, जी कितना संचित में से आपने यूज किया और कितना उसमें ऐड किया या कितना सब्सट्रैक्ट किया, जी उसकी रिफ्लेक्शन D1 में अब जो आप इस जन्म में भोगेंगे। एक तो संचित जो चला आ रहा है पीछे से काफी हजारों वर्षों से, या जितने भी आप जन्म लिए हैं, जी वो ऐड होते जा रहा है, ऐड होते जा रहा है, ऐड होता है, ऐड हो रहा है, सब्सट्रैक्ट हो रहा है, ऐड हो रहा है, सब्सट्रैक्ट। प्रारब्ध उसमें कुछ आप भोग रहे हैं, कुछ आप ऐड कर रहे हैं, कुछ आप सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं। जी इसका पूरा कंसोलिडेट होके जातक को D1 में मिला। दैट्स व्हाट आई अंडरस्टैंड। जी ओके। सनी कुछ कहना चाहते हो? श्रेया कुछ कहना चाहती है? सनी क्या कहना चाहते हो? Guruji, I think similar to what Praveenji said, D60 is your accumulated karmas, and D9 is basically when you were taking birth in this life, you agreed on, okay, these are out of those Sanchit karmas, I will actually pay my dues for this set of karmas, so that becomes your D9. And after this birth, again, all this Kriyamana karma happens, and again, the balance goes back to your D60. ओके श्रेया। सर D60 हमारे जितने अब तक के कर्मास हैं वो सारे एक बैंक में इकट्ठे हो गए हैं। D9 का जो हमें प्रारब्ध अब हमें भोगने को मिल गया कि भैया यहाँ से तुम कितना ही निकाल लो, ये तुम्हारे इस जन्म के सारे कर्मस कितने यू कैन यूज देम। एंड D1 जो कुंडली में हमारे कर्मस छप गए हैं वो जो हम बना रहे हैं। ठीक है, नाइस। पारुल।
तो गुरुजी आई थिंक आई एग्री विद द D60 और D60 एग्री करते हैं, बट D9 में जो सबसेट है, इट्स लाइक वो छन्नी होके आते हैं कि अच्छा इसमें अब सारा का सारा तो सारे कर्मा एक साथ नहीं कर सकते, तो ओनली लाइक अ लिमिटेड अमाउंट इज गिवन टू अस। और जो D1 है ना, वो हमारे डे टू डे कर्मास भी होते हैं, जो हमने आज किसी के साथ किया वो वाले भी इंक्लूड होते हैं। तो अगर मैंने आज किसी के साथ कुछ अच्छा किया, वो उसका भी फल मुझे अभी आने वाले दिनों में या उसमें मिलता है, क्योंकि वो मून कुंडली से जब हम चेक करते हैं और D1 और हम देखते हैं कि हमारे पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर में क्या चल रहा है, उसमें इफ वी कीप ऑन डूइंग लाइक गुड कर्मास, तो हमारे जो खुद के अगर बैड कर्मास भी जो लिखकर हम आए हुए हैं ना, वो नहीं भोगेंगे, वो हमारे चेंज होते रहेंगे। तो दिस इज समथिंग कॉल्ड एज आई थिंक क्रियामानी कर्मा कुछ कहते हैं, जो क्रियामानी कर्मा होते हैं जो आप करते हो as you are living, you are doing those karmas or the karmas that also they don't get accumulated. Like some of them you actually get to experience it in this life, and that is what D1 also represent, that wo kriyamana karma ko how and where are you putting it. Good. You all have a very fair understanding. I want to add something to this. You'll be very excited to understand this thing. You know what? D9 is your ghost state. Should I repeat? D9 is your ghost state, when you are a ghost. D9 represents that intermediate time between your last death to your new birth. Oh. मतलब आपकी डेथ हो गई, आपके पास सिर्फ D60 था, आप वहां जाके नेगोशिएशंस कर रहे हो, नहीं जी मुझे तो ये लगन चाहिए, मेरे पास तो पिछले जन्म में सेक्सुअल एबिलिटी नहीं थी, I was very weak sexually, this time please give me good sexual ability. I was a duffer guy in the last, please make me intelligent this time. Now you are talking to Chitragupta. Chitragupta is saying इसका लाना जरा D60 लाना, देखो इसमें कुछ है कि नहीं है? Can we give him, has he done things better? So okay, give him good physicality. Okay, this time he should be looking very good, sexy, you should be a stud guy. Okay, give him birth like that. He should not be, timid or not. Let him enjoy, his sexual life. He was a foolish guy. Has he good Mercury things? Okay, give him intelligence also this time. But your one karma is pending of dying in the accident. तेरे को यार एक्सीडेंट में मरना पड़ेगा, तेरी एज जो है इसमें 35 साल ही है। नो 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 नो, मैं 35 साल कैसे रहूंगा? नो यार, अब तेरे को ये इस जन्म में कर ले यार, खत्म कर इसको, फिर देखेंगे। देन द सोल एग्रीज टू इट। ठीक है, सब कुछ करवा देना, हाँ, शशांक की तरह मुझे बहुत अच्छा एक्टर बना देना, सब कुछ कर देना, लेकिन जल्दी जाना पड़ेगा। सिद्धू मूसेवाला की तरह 28 साल की एज में इतना फेमस कर देना, मिलियन सब्सक्राइबर कर देना, लेकिन भाई 28 साल में यू विल बी हिट बाय 17 बुलेट्स, यू हैव टू कम बैक। वो आत्मा एग्री करती है। वो जो एग्रीमेंट है ना, इंटरमीडिएट एग्रीमेंट जो आपका हो रहा है कि आपकी डिग्निटी देखी जा रही है आपके बाहर के प्लैनेट्स की। When you are a ghost, you are doing some negotiations, your soul is doing some negotiations. That particular negotiation is D9. इसीलिए धन की स्टेबिलिटी में कहां पे देख रहा हूं कि आत्मा वो कह रही है ना कि स्टेबल होगा कि नहीं होगा, पैसा स्टेबल होगा, वो मैं D1 से कैसे चेक करूं? आप समझ रहे हैं मेरी बात? Did you get it or not? आप समझिए। और अगर D9 में प्रॉब्लम है तो मतलब इस जन्म के लिए आपकी सोल उनको कन्विंस नहीं कर पाई उस चीज के लिए कि मुझे इस लाइफ में ये स्टेबिलिटी में साथ चाहिए। आप समझ रहे हो?
आपकी सोल उस घोस्ट में, उस पर्टिकुलर फॉर्म में वो कम्युनिकेट नहीं कर पाई कि मुझे ये सब चीजें चाहिए। तभी तो जब हम शादी देखते हैं, हम D1 चाहे खराब भी हो, कोई प्लैनेट D1 में खराब भी हो, हम D9 में भाग के उसको देखते हैं। सनी भाग के देखता है, पारुल जी भाग के जाके देखती हैं, वो देखती है कि क्या सोल ने कन्विंस किया था इसके लिए। बोलो हाँ, सोल ने तो कन्विंस किया था। तो मतलब ये है, आफ्टर डूइंग few good karmas in D1, you can attain certain things। इसीलिए D9 के अंदर जो योग बनते हैं उनका उपाय भी नहीं होता। मैंने आपको पहले भी बताया कि वो नेगोशिएशन तो, उसका उपाय तो बहुत डिफिकल्ट है, इट्स वेरी डिफिकल्ट, क्योंकि उसकी नेगोशिएशन तो आत्मा पहले ही कर चुकी है, दैट हैज बीन नेगोशिएटेड। आप मेरी बात को थोड़ा सा क्लियरली समझिए कि व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू, दैट if there is a difficult yoga in D9, उसका क्या उपाय करोगे? You have already signed the contract. How can we change that contract? In the D1, by doing good karmas, we can change the contract. Because D1 also have the free will. D1 also have the free will. D9 में कोई free will नहीं है आपके पास। और D60 दिखाता है, और D60 की एक्यूरेसी लेस देन 1% कुंडलियों में होती है। इसीलिए परमात्मा ने D60 को बहुत बड़ा सीक्रेट रखा है, क्योंकि ये एक इंडिविजुअल, एक ऐसा चार्ट है जो विद इन सेकेंड, 15 सेकेंड, 1 मिनट 30 सेकेंड में बदलता जाता है। For the right BTR to get accurate D60 is the most challenging thing. 99.99% people may not have an accurate D60, may have an averagely fine D60, but may not be an accurate D60. How many of you have understood what I am saying? सनी, पारुल, अब थोड़ा सा माइंड बदल रहा है, समझ रहा है कि क्या, कैसे थोड़ा सा हम इसको कैसे डिफरेंटली समझते हैं D9 और D60 को। Yeah, Guruji. So that's why like D1 का जो मैं आपको क्रियामानी कर्मा जो बोला था, that is your free will, right? जैसे आपने एग्जांपल्स दिए थे कि जैसे एक बंदा है, उसकी आपने जब कुंडली देखी थी तो ओके, he should have died but he was alive, right? वो उसके क्रियामानी कर्मा और फ्री विल ऑफ D1 थे, जिसने उसके D9 के नेगोशिएशन को कैंसिल कर दिए थे। और आपका चंद्रमा आपके मन और आपके मन के जो भाव है और जैसा मन है आपका, उसके हिसाब से आपकी लाइफ में इवेंट्स घटित हो रहे हैं। इसलिए चंद्र कुंडली से हम इवेंट्स को देखने की कोशिश करते हैं। अच्छा गुरु जी, इसमें D1 जो है, जो आप कर रहे हैं, जो भी आप एक्शन कर रहे हैं, जो भी आप कर्मा कर रहे हैं, इसमें कुछ संचित हो रहे हैं, कुछ संचित कर्मों को काट भी रहे हैं। देखो, D1 एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है, आपको एक्सटर्नल एनवायरनमेंट की वजह से कर्म काटने पड़ रहे हैं। जी जी, उसका लेकिन जो ऐड भी तो हो रहे हैं, उसका सॉरी, कुछ संचित कर्म ऐड भी तो हो रहे हैं उसमें। भाई सब तो बिल्कुल आप ऐड हो नहीं रहे, लेंगे, कुछ तो ऐड भी होगा। बिल्कुल ऐड हो रहे ना, वो आपकी फ्री विल के कारण ऐड हो रहे, आपके रिएक्शन के कारण ऐड हो रहे। जी, आपका जो रिएक्शन है, आपके साथ बुरा हुआ, आप 10 लोगों के साथ और बुरा कर रहे हो। आपके साथ बुरा हुआ, आप जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए कह के भगवान के और नजदीक जा रहे हो। आप धार्मिक स्थलों पे जा रहे हो, आप लोगों की मदद कर रहे हो, किसी के साथ चीटिंग नहीं कर रहे हो, किसी का दिल से हमेशा आप प्रार्थना कर रहे हो, तो वो उसको बोलते हैं। इसीलिए बोलते हैं गुरु के साथ जुड़ो, टीचर के साथ जुड़ो। मेरा काम क्या है? मुझे पता है आपका D1 क्या है। मेरा काम है कि आपको सही रास्ते पे चला के आपका टाइम पास करवाना, आपको हाथ पकड़ के। अब मान लो कि रास्ता बहुत खराब है और आपको लगता है आप गिर जाओगे, गुरु ने सिर्फ आपका हाथ पकड़ना, ना आपके लिए वो रास्ता चेंज कर रहा है,
ठीक है ना, आपकी वो थकान खत्म कर रहा है, सिर्फ आपको एक हौसला है कि मेरा हाथ किसी ने पकड़ा हुआ है, और वो हौसला इतना बड़ा होता है कि आपके सारे कर्म कट जाते हैं। भगवान का सहारा इतना बड़ा सहारा होता है कि जिसकी वजह से आपके सारे कर्म कट जाते हैं। कर्म कटने का मतलब ये नहीं खत्म हो जाते हैं, यू एक्चुअली बर्न देम योरसेल्फ बाय लिविंग देम। आप समझिए मेरी बात। आज मैं सुबह पढ़ रहा था वो जहाँ पे विराट कोहली जी भी गए, वो जो गुरुजी है 17 साल से उनकी किडनी खराब है, और वो सिर्फ राधा 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 करके अपनी लॉन्जिविटी को बढ़ाते जा रहे, उनके करते गुरु से जा रहे। उनको वही नाम मिला। He has got that name from his guru. राधा, राधे 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 राधे, क्या बल है नाम में। आपका D1 D9 जितना मर्जी खराब हो, अगर आप हरे कृष्ण महामंत्र करते हैं, राधे राधे करते हैं, शिव शिव करते हैं, राम राम करते हैं, बच जाओगे बच जाओगे बच जाओगे बच जाओगे। कोई ना कोई कुदरती हेल्प आपको मिल ही जाएगी, ट्रस्ट मी, मिल ही जाएगी, फॉर श्योर है। सम रेस्क्यू विल कम, because over and above these planets there are forces, and they are more powerful than these planets. इसीलिए मैं अपने स्टूडेंट्स को पहले स्पिरिचुअल बनाता हूं, फिर उनको कहता हूं वॉच योर कर्मा, वॉच योर कर्मा, वॉच योर कर्मा। एवरी सिंगल डे जस्ट ट्राई एंड एनालाइज, वॉच योर कर्मा। So that D9 is that ghost state, that intermediate state where the negotiations were happening and those negotiations were freezed, and then agreement was signed. And then based on that agreement, you were given the environment. And then you started living in that environment. That is your D1. It is just like you are working in a company and only few people know about your appointment letter. You don't show your appointment letter to everyone. And there are various clauses in the appointment letter that you also don't even know, but you have signed it. How many of you have read your appointment letter, from first point to last point, Just you know, अच्छा salary इतना है, CTC इतना है, medical है, छुट्टी इतना, चल sign कर, खत्म। हाँ? ऐसे ही पढ़ते हैं ना, और तो कुछ पढ़ते ही नहीं। This is the Subject exact market risk है वो। This is the exact definition of D9. Exact definition of D9. इसको समझो, आपको D9 बड़ा आसान लगेगा। D9 शादी नहीं है, D9 आपकी पूरी डेस्टिनी है। It is your complete destiny. You have to understand this thing. If you don't understand, then you are not good in Jyotish. समझ रहे हैं आप? I hope I have made you absolutely clear. So after doing these 12 yogas, so I have taught you 74 धन योग पढ़ा दिए मैंने आपको, 74 धन योगास। 75th धन योग, Parul will ask D10 later because then we will be distracted. Okay. The 76th Dhana Yoga is that if you want to understand whether you will earn more than your family or will you earn less than your family, means will you earn more than your parents or you will not be more successful than your parents, this yoga has to be understood. The yoga says
if the Lagna Lord is in the 10th house or the 10th Lord is in the Lagna. Okay. If your Lagna Lord is in the 10th house or your 10th Lord is in the Lagna, you will always be more successful than your parents. Guaranteed. So if your parents are here, you will reach here. That means you will progress, you'll much more financially stable, you'll have much more assets as compared to your parents. If first Lord is in the Lagna Lord is in the 10th house or the 10th Lord is in the Lagna. So anyone who has this yoga, please, the Lagna Lord in the 10th house or the 10th Lord in the Lagna. Okay, my husband 10th Lord is in the Lagna. So definitely he will progress more than the inheritance. Has he? Guruji, I also have my Lagna Lord in the 10th house. And you are better than your background? Yes, yes, D1. yes, I'm talking of D1. definitely. Yes. Right? So Disha, definitely you will have a better life and progress than your background. Definitely. 100%. When you say that, okay, I was from this family, now I have reached this level. So uske liye, yeah. So Lagna Lord in the 10th, in the D1, means your daughter will be 100 times better than you professionally. ये बात याद रखना. So you should be, no. Okay, your daughter, yeah. So definitely she'll progress more than you. If the first Lord is in the 10th house or the 10th Lord is in the Lagna, especially in the D1 chart. And you can see, my 10th Lord is in the first house, Arjun, 100%, आपकी पूरी फैमिली की लीनिएज पैसा एक तरफ है, जितना आप कमाओगे वो एक तरफ होगा. See, fantastic. So you should not worry about your elder daughter, Praveen ji. वो आपसे कहीं आगे जाएगी, कहीं आगे. राइट? तो ये बड़ा अच्छा योग होता है, ये बड़ा पावरफुल धन योग होता है. फिर आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं. लग्न लॉर्ड इन द 10th हाउस, आई एग्री व्हाट यू से. इफ द 10th लॉर्ड इज इन द लग्न, सेम. बट इफ द लग्न लॉर्ड इज इन द 10th हाउस, आपको बहुत मेहनत करना पड़ेगा. You have to really work hard. But if the 10th Lord is in the Lagna, right, you might not have to work hard, but still you will be able to achieve. But if the Lagna Lord is in the 10th house, you are in the war zone. You'll have to really work hard, really work hard. Okay. Okay. 10th Lord, deblate, no problem. No problem. You are a little unaware. You would need guidance. When you give the right guidance, then you will succeed. आज के लिए इतना ही है.